اب آریان کہہ رہا تھا کہ ان پیسوں سے میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں. ابر تمہیں پتہ ہے نا اس کا کاروباری ذہن ہے، وہ کر سکتا ہے، تھوڑی محنت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا. اب میرے بچے کے پیسے آ گئے، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہے. ارے ہاں ناشتہ بنا دو، مجھے جانا ہے. ابھی لائی. ہاں یا اللہ تیرا شکر ہے، آریان کے لیے جو پریشانی تھی اللہ نے دور کر دی. شکر ہے میرے مالک. صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ بھائی میری فلائٹ ہے، میں لاہور جا رہا ہوں کام کے سلسلے میں. کام کے سلسلے میں؟ جی بھائی، لاہور کی مارکیٹ میں کافی سستا مال آیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں وزٹ کر لوں. دیکھ لینا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اس بار ہم نہ ادھار پہ کوئی چیز لیں گے نہ دیں گے. پہلے بھی کافی نقصان ہو چکا ہے نا ہمیں. جی بھائی مجھے اچھی نصیحت ہو گئی ہے، میں کوشش کروں گا کہ آج کے بعد ایسی غلطی نہ ہو. تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دوں میں نے ٹیکسی منگوا لی ہے. بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے، فلائٹ چھوٹ جائے گی، میں چلتا ہوں. سوچ رہا ہوں کہ بزنس پھر سے شروع کیا جائے. لاہور سے واپس آؤ تو بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرنی ہیں. اگر تم سب میرا ساتھ دو گے تو ٹھیک ہے بھائی، پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے. میں چلتا ہوں. میں جیسے لاہور سے آتا ہوں اس بارے میں سوچتے ہیں. کچھ چینج بنا لیا کرو. بتا دیتے نا مجھے، میں کچھ اور بنا لیتی. اچھا آج کھا لیں، کل سے بنا دوں گی کچھ اور. آپ بھی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسا ہے مزیدار. پہلے برائی کرتے ہیں، اس کے بعد ہر چیز میرے ہاتھ کی اچھی لگتی ہے آپ کو. شاویر کہاں؟ شاویر لاہور گیا ہوا ہے کاروبار کے سلسلے میں. ویسے بچہ محنت تو کر رہا ہے، اللہ اس کے کام میں برکت ڈالے. بس اللہ کرے وہ اور ایمان ایک ہو جائیں بس. حوالے سے ایک بات نوٹس کی امبر. کیا؟ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ شاویر کو ایک موقع اور دینا چاہ رہی ہے کہ وہ اپنی غلطیاں مان لے اور دوبارہ لوٹ آئے؟ اب دیکھو نا، شاویر کی مدد کرنا وہ بھی 5 لاکھ روپوں سے، اور آج وہ اپنا کام لے کر لاہور تک جا رہا ہے، کام کو پھیلا رہا ہے. ان سب سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کرے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. آصف جس دن یہ دونوں ایک ہو جائیں گے نا، میرے دل کو اتنا اطمینان ہو جائے گا. ابھی بے چینی سی ہے، جب تک یہ نہیں ہو جاتا مجھے سکون نہیں ملے اور گا. بہت جلد اللہ ہمیں خوشی سنائے گا، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک نوالا دے دے مجھے بھی. ہاں یہ لو. دیکھ مانور، تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ سیڑھیوں سے گرنے کی ایکٹنگ کرنی ہے، اور تو نے زور سے چیخ مارنی ہے. لیکن تو نے یہ سب کچھ اس وقت کرنا ہے جب تیری سانس تیرے آس پاس ہو، تاکہ اس واقعے کا کوئی چشمدید گواہ ہو. جیسے ہی تو چیخ مارے گی، دوڑتی بھی آؤں گی اور تجھے ہسپتال لے جانے کا ڈرامہ کروں گی. لیکن ہم نے ہاسپٹل جانا کیوں ہے؟ ارے پگلی، ہم ہسپتال تھوڑی جائیں گے، ہم تو گھومیں گے. ڈرامہ سیریل میری بیوئمامن آنے والے ایپیسوڈز نہایت ہی تہلکے خیز ہونے والے ہیں. شاہبیر اور مہنور کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی کھڑی ہو جائے گی، اور اسی لڑائی کے دوران مہنور کا ایک اور جھوٹ
भी सामने आने वाला है। दूसरी तरफ आर्यन की वापसी हो रही है और उसके तमाम मसाइल भी आखिरकार हल होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त शाहबीर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ईमान को मना ले। वो अपनी माँ के पास बैठता है तो उसकी माँ उसे दिल की बात खोल कर कहती है कि वो चाहती है कि शाहबीर और ईमान दोबारा एक हो जाएं और उनके दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। जवाब में शाहबीर कहता है कि वो खुद भी यही चाहता है, मगर ईमान की अना उसको करीब नहीं आने दे रही। इधर ये सारी बातें महनूर सुनती है और अंदर गुस्से से भर जाती है। वो कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ ज़बरदस्त तलख कलामी करती है। उसकी माँ उसे तनबीह करती है कि अगर शाहबीर ईमान की तरफ झुक गया तो इनका पूरा मंसूबा नाकाम हो जाएगा और घर से निकलने का खतरा भी पैदा हो जाएगा। बच्चे वाला जो झूठ उन्होंने घड़ा था, इस पर भी महनूर फिक्रमंद हो जाती है कि कब तक वो इस झूठ को निभाएगी। इस पर इसकी माँ एक नया खौफनाक मंसूबा बनाती है कि वो दोनों बाहर जाएंगी, घूमे फिरेंगी और घर वापस आकर कहेंगी कि महनूर का बच्चा ज़ाया हो गया, और उस हारिस का इल्ज़ाम भी वो खुद किसी न किसी ड्रामाई तरीके से कायम कर देगी। इसी प्लानिंग के दौरान माँ बेटी के दरमियान भी झगड़ा शुरू हो जाता है। जब शाहबीर कमरे में आता है तो महनूर उसे बेरखी से जवाब देती है और तंज करती है कि अब तो हर बात में ईमान ही तुम्हें अच्छी लगती है, तो फिर उसी के पास चले जाओ। उस पर शाहबीर गुस्से में जवाब देता है कि हो सकता है वो ऐसा ही करे। अब जैसे ही माँ बेटी अपने अगले मंसूबे पर अमल करेंगी, वैसे ही उनके तमाम झूठ पे नकाब होने वाले हैं। दूसरी तरफ घर में हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। आर्यन के पैसे वापस मिल गए। ईमान और शाहबीर के दरमियान रंजिशें ख़त्म हो रही हैं और बिहा के हालात भी बेहतर हो रहे हैं। ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की अगली किस्त में कहानी एक नए शदीद और जज्बाती मोड़ में दाखिल होने वाली है। शाहबीर और महनूर के दरमियान होने वाली कशीदगी इस हद तक बढ़ जाएगी कि उन दोनों का रिश्ता बाकायदा टकराव की सूरत अख्तियार कर लेगा। इस टकराव के दौरान महनूर का वो बड़ा झूठ जिसे वो काफ़ी अरसे से छुपा रही थी, आखिरकार शाहबीर के सामने आने वाला है। ये झूठ न सिर्फ उसकी शख्सियत को बेनकाब करेगा, बल्कि उसके मुस्तकबल को भी ख़तरे में डाल देगा। शाहबीर उस वक्त पूरी संजीदगी और नरमी के साथ ईमान को मनाने में लगा हुआ है। वही अपनी माँ के सामने दिल खोल कर कहता है कि वो चाहता है कि उसकी और ईमान की जिंदगी दोबारा सही राह पर चल पड़े, लेकिन ईमान की ज़िद और इना उसको करीब नहीं आने देती। इस गुफ्तगू के दौरान उसकी माँ उसे पूरा हौसला देती है कि वो कोशिश जारी रखे, मगर महनूर जो बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही होती है, अंदर ही अंदर आग बगुला हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि शाहबीर का दिल अब मुकम्मल तौर पर ईमान की तरफ झुक चुका है। गुस्से से भरी महनूर अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ से तल्ख लहजे में बात करती है। उसकी माँ उसे डांटती है कि तुम्हें अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी होगी, वरना हम इस घर से सीधा बाहर निकाल दिए जाएंगे। वो उसे याद दिलाती है कि जो झूठ उन्होंने बच्चे के बारे में बोला था, अगर वो वक्त पर उसका कोई मजबूत ड्रामा न खड़ा किया गया तो सब कुछ गुस्से से भरी महनूर अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ से तल्ख लहजे में बात करती है। उसकी माँ उसे डांटती है कि तुम्हें अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी होगी, वरना हम इस घर से सीधा बाहर निकाल दिए जाएंगे। वो उसे याद दिलाती है कि जो झूठ उन्होंने बच्चे के बारे में बोला था, अगर वो वक्त पर उसका कोई मजबूत ड्रामा न खड़ा किया गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उसीलिए वो एक नया चालाक मंसूबा बनाती है कि दोनों बाहर जाएंगी और वापसी पर एक झूठे हादसे का ड्रामा करेंगे कि महनूर का हमल दायर हो गया। इस झूठ को मजबूत बनाने के लिए वो कहती है कि वो खुद कहीं उसे दिखा दे देगी ताकि बात हकीकत जैसी लगे। इसी दौरान माँ बेटी में ज़बरदस्त झगड़ा भी होता है, क्योंकि महनूर अब मुसलसल इस डर और दबाव में है कि उसका झूठ कब तक छप सकता है। दूसरी तरफ जब शाहबीर रोम में आता है तो महनूर इससे बदतमीजी से बात करती है और तंजन कहती है कि अब तो तुम्हें ईमान ही हर बात में अच्छी लगती है, तो जाकर उसी के साथ रहो। शाहबीर उस बार खामोश नहीं रहता और गुस्से में जवाब देता है कि शायद वो वाकई ऐसा ही करेगा। ये बात महनूर के लिए बिजली बनकर गड़ती है और वो समझ जाती है कि अब हालात उसके
काबू में नहीं रहे। कहानी का रख अब ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां महनौर और उसकी मां का अगला कदम ही उनकी बर्बादी का बांस बनेगा, क्योंकि जैसे ही वो अपना नया प्लान शुरू करेंगी, शाहबीर, ईमान और घर के दीगर लोग भी उनकी हकीकत जानने वाले हैं। दूसरी तरफ आर्यन के मामलात भी संभल रहे हैं। उसके पैसे वापस आ गए हैं। शाहबीर और ईमान के दरमियान गलत फहमियां कम हो रही हैं और बिहा की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। घर में जो बिगाड़ फैला हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता दिखाई दे रहा है। यूं लगता है कि आने वाली कुश्तों में ड्रामा अपनी असल शिद्दत को छूने वाला है और बहुत से राज बेनकाब होने के करीब हैं। आने वाली किस्त में कहानी मजीद शिद्दत इख्तियार करती नजर आ रही है, क्योंकि महनूर और उसकी माँ के झूठों का दायरा इतना वसीया हो चुका है कि अब वो खुद भी उसमें फंसने लगी हैं। महनूर के अंदर खौफ, गुस्सा और बेचैनी मुसलसल बढ़ रही है। एक तरफ उसे डर है कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए, और दूसरी तरफ उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि शाहबीर फिर से ईमान की तरफ माइल हो रहा है। यही वजह है कि वो हर बात पर चढ़ जाती है। हर मामूली सी बात उसे गुस्से में ले आती है और उसका रवैया शाहबीर से और ज्यादा खराब होता जाता है। शाहबीर का रवैया भी अब तब्दील हो रहा है। पहले वो महनूर को बर्दाश्त करता था, उसकी सख्त बातों को नज़रअंदाज भी कर देता था, मगर अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जब महनूर इससे तंज करती है कि अब तुम्हें ईमान ही अच्छी लगती है, उसी के पास चले जाओ, तो शाहबीर पहली बार खुलकर जवाब देता है कि शायद वो वाकई ऐसा करे। ये जुमला उसके दिल की असल कैफियत को जाहिर करता है कि वो महनूर के झूठ, उसकी बदतमीजी और उसकी माँ की साजिशों से बुरी तरह तंग आ चुका है। इधर महनूर की माँ इस सूरत हाल को देखकर मजीद बौखला जाती है। वो जानती है कि अगर अभी कोई बड़ा ड्रामा न रचाया गया तो सच सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए वो एक खतरनाक मंसूबा बनाती है जिसमें वो बाकायदा महनूर को कहीं गिराकर झूठा हादसा करवाने की बात करती है। उसकी नज़र में यही वाहिद रास्ता है जिसके जरिए वो शाहबीर की हमदर्दी दोबारा हासिल कर सकेंगे। लेकिन महनूर अंदर से उस मंसूबे से खौफजदा भी है, क्योंकि उसे एहसास है कि अगर जरा सी गलती हुई। ड्रामे की कहानी अब इस नेज पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दब रहा है। खासतौर पर महनूर और उसकी माँ, इन दोनों के फैलाए हुए झूठ अब जंजीर की तरह उनके पीछे जड़ते जा रहे हैं और हर झूठ को छिपाने के लिए एक नया फरेब घड़ना पड़ रहा है। उस सूरत हाल ने महनूर की आहनी कैफियत को शदीद मुतासिर किया है। वो हर लम्हा फिक्र, हसद और खौफ में मुब्तला रहती है। उसे महसूस होने लगा है कि शाहबीर इससे दौर हो रहा है और उसके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। महनूर के उस अंदरूनी खौफ को या तो उसकी आंखों की बेचैनी बयान करती है या उसके लहजे की तलखी। वो घर में मामूली बातों पर भी भड़क उठती है, कभी अपनी माँ पर चीखती है और कभी शाहबीर से उल्टे सीधी बातें करती है। उसका रवैया बता रहा है कि वो खुद भी समझ चुकी है कि अब झूठ का भरम ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। उसकी अपनी माँ भी उसकी बढ़ती हुई बेकरारी से तंग आ चुकी है, लेकिन फिर भी उसे डरा धमका कर काबू में रखने की कोशिश करती है ताकि वो उनकी खफिया मंसूबाबंदी पर अमल करती रहे। दूसरी तरफ शाहबीर खुद एक दोराहे पर खड़ा है। उसके अंदर की थिकना और मायूसी बढ़ती जा रही है। महनूर का रवैया, उसके झूठ और उसकी माँ की साजिशों ने उसे बेहद ज़हनी तौर पर थका दिया है। वो जब भी ईमान के साथ गुजारे हुए सुकून भरे लम्हों को याद करता है तो इसे एहसास होता है कि उसने एक गलत इंसान को दिल में जगह दी थी। यही वजह है कि अब वो खुलकर ईमाना की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसे अंदर ही अंदर यकीन हो गया है कि महनूर ने हमेशा उसे धोखे में रखा। ईमान भी आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ती जा रही है। शाहबीर की रोज बरोज बदलती हुई संजीदगी और उसका पुरस्कून अंदाज ईमान के दिल की सख्ती को नरम कर रहा है। वो भी महसूस कर रही है कि शायद शाहबीर वाकई बदल चुका है और अब दिल से चाहता है कि उनके दरमियान की दौरियां खत्म हो जाएं। ईमान के उस नरम रवैये ने घर के माहौल में उम्मीद की एक नई करण पैदा कर दी है। इधर आर्यन की वापसी ने भी घर में खुशी की हल्की सी हुआ चला दी है। उसके पैसे वापस जाने से उसकी बड़ी परेशानी दूर हो गई है और उसके चेहरे पर जो सुकून आया है वो सब घर वालों को महसूस हो रहा है। बिहा भी हालात बेहतर होने
से कुछ मुतमईन सी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि एक लंबे अरसे बाद घर में सुकून के आसार जाहिर होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर का नहीं, क्योंकि महनूर और उसकी माँ अपने अगले बड़े छोटा इस्कात हमल की तैयारी कर रही हैं। वो दोनों ये समझ रही हैं कि उस नए ड्रामे से वो एक बार फिर शाहबीर की हमदर्दी हासिल कर लेंगे, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं कि किस्मत अब उनके खिलाफ हो चुकी है। वो जो भी कदम उठाएंगे वही उन्हें बेनकाब करेगा। यूं लगता है कि अगली किस्त में कहानी एक बड़े धमाके से खुलेगी, सच सामने आएगा, रिश्ते आजमाए जाएंगे और झूठ का पर्दा हर हाल में चाक होगा। ड्रामे की रफ्तार तेजी पकड़ रही है और जज्बात की शिद्दत अब अपने उरूज पर पहुंचने वाली है। कहानी अब उस मकाम पर दाखिल हो रही है जहां हर किरदार की असल नीयत और उसके अंदर छिपे हुए जज्बात पूरी शिद्दत के साथ सामने आ रहे हैं। महनूर और उसकी माँ के खौफ ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया है। पहले वो सिर्फ झूठ बोल रही थीं, मगर अब वो झूठ को सच साबित करने के लिए नुकसान द और खतरनाक तरीके सोचने लगी हैं। मम मुसलसल महनूर पर दबाव डाल रही है कि अगर उसने वक्त पर कोई बड़ा ड्रामा ना रचाया तो शाहबीर न सिर्फ उससे दूर हो जाएगा बल्कि पूरा घर देता है। वो बार बार अपनी माँ से लड़ पड़ती है और कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती, मगर उसकी माँ अपनी चरब जबानी और सख्त लहजे से उसे फिर अपना मेहरा बना लेती है। माँ उसे याद दिलाती है कि अगर वो एक बार फिर शाहबीर की हमदर्दी जीत ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है, मगर अगर वो पीछे हटी तो इन दोनों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ शाहबीर के अंदर भी एक जंग चल रही है। वह अपने दिल में ईमान के लिए नरम गोशा महसूस करता है, मगर महनूर के मुसलसल झगड़ों ने उसे सख्त कर दिया है। उसने अब खुलकर फैसला कर लिया है कि वो महनूर की बातों पर मजीद खामोश नहीं रहेगा। यही वजह है कि अब वो उसे जवाब देने लगा है, उसकी बातों का बुरा मानने लगा है, और जब वो ईमान का नाम लेती है तो वो साफ लफ्जों में कह देता है कि शायद अब वो वाकई ईमान के साथ ही ज्यादा खुश रह सकता है। उसका ये बदलता हुआ अंदाज न सिर्फ महनूर को परेशान कर रहा है, बल्कि घर वालों को भी एहसास दिलवा रहा है कि महनूर के मामलात अब आम गलतफहमियां नहीं बल्कि भरपूर साजिशें हैं। ईमान के दिल में भी एक नरम लहर उठ रही है। वो शाहबीर के बदलते हुए रोये को देखकर हैरान भी है और सोच में भी पड़ गई है। शाहबीर की कोशिशें उसे दिखाने लगी हैं कि शायद वो हकीकत में अपनी गलतियां सुधारना चाहता है। वो इसकी हर छोटी बात का ख्याल रखने लगा है। कभी खामोशी से उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, कभी सर झुकाकर उसके पास बैठ जाता है। ईमान की अंदरूनी कशमकश भी बढ़ रही है कि क्या वो दोबारा एतमाद कर ले या फिर खुद को इस धोखे से महफूज रखे। घर में हालात बेहतर होने की खुशी भी मौजूद है। ख़ास तौर पर आर्यन की वापसी ने माहौल को कुछ हल्का कर दिया है। उसके पैसे वापस आ गए हैं और वो पहले से ज्यादा पुरस्कून दिखाई देता है। बेहा के चेहरे पर भी एक तवील अरसे बाद इत्मीनान के आसार नजर आ रहे हैं। यूं लगता है कि घर में जो अंधेरा थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, मगर ये सुकून सिर्फ एक लम्हाती वक्फा है, क्योंकि आने वाली तबाही के आसार साफ महसूस हो रहे हैं। माँ बेटी अब अपने झूठे उसकात हमल के मंसूबे को अमली सूरत देने के लिए हरकत में आ रही हैं। वो सोच रही हैं कि कब, कहाँ और किस तरह ये ड्रामा रचाया जाए ताकि सबको यकीन आ जाए कि महनूर वाकई हमला थी और उसी दौरान हादसा हो गया। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि उनका ये मंसूबा ही उनके झूठ का आखिरी ताबूत वो साबित होगा, क्योंकि शाहबीर मुसलसल चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और घर में हालात पहले से कहीं ज़्यादा हसास हो चुके हैं। यूँ महसूस हो रहा है कि अगली किस्त में न सिर्फ एक बड़ा इंकिशाफ होगा, बल्कि सच पूरी शिद्दत के साथ सामने आएगा। हर किरदार का चेहरा बेनकाब होगा और सबके सामने ये हकीकत आएगी कि कौन सच का साथ दे रहा था और कौन झूठ का सहारा लेकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। ड्रामा एक नाजुक और फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जहां के एक झूठ सब कुछ बदल कर रख देगा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ड्रामे की फजा मजीद सनसनीखेज और संगीन होती जा रही है। महनूर और उसकी माँ के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, खौफ और बदगुमानी जन्म ले रही है। हर गुजरते लम्हे के साथ उन्हें महसूस होता है कि
इनका जाल कमजोर पड़ता जा रहा है और किसी भी वक्त सच उनके सामने आ खड़ा होगा। महनूर जितनी देर तक उस झूठ को संभालती है, इतना ही वो खुद अंदर से टूटती जा रही है। उसकी आंखों में नींद बाकी नहीं रही, उसके चेहरे का आत्माद खत्म हो रहा है और उसके दिल में एक अजीब सा वहम बैठ चुका है कि सब लोग इस पर शक कर रही हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़कर वो झूठ को सच साबित करे। माँ की नज़र में इज्जत, महब्बत और रिश्ते शरीर फानवी हैं, असल चीज़ है उस घर में अपनी गिरफ्त मजबूत करना। यही वजह है कि वो इस बार झूठे इस्कात हमल जैसे संगीन और जालिमाना कदम की तरफ बढ़ रही है। महनूर खुद भी जानती है कि यह कदम बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पास वापस मुड़ने की हिम्मत नहीं रही। वो अपनी माँ के दबाव में आकर घटती हुई आवाज़ मैं हाँ तो कर देती है, मगर अंदर से टूट जाती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई कैदी जो आज़ाद तो होना चाहता है मगर जंजीरों में बंधा हुआ है। उसके जहन में बार बार ये ख्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही इस झोट में तबाह हो जाए। दूसरी तरफ शाहिबीर अब मुकम्मल तौर पर महनूर के रवैये को समझने लगा है। वो देख रहा है कि महनूर हर वक्त चढ़चढ़ी, तलख और झूठ गढ़ने में मसरूफ रहती है। उसे हर बात में साजिश नजर आती है। वो जितना महनूर से दूर होता है, इतना ही ईमान के करीब हो जाता है। वो ईमान की खामोशी, उसकी बेकार भरी बर्दाश्त और उसकी नरमी को महसूस कर रहा है। शाहबीर के दिल में अब यह एहसास जाग उठा है कि असल सुकून ईमान के साथ था, न कि महनूर के साथ। ईमान भी अब खुद को मजबूर नहीं कर रही, वो खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी में गहरी सोचें छिपी हुई हैं। वो देख रही है कि शाहबीर वाकई कोशिश कर रहा है। उसके लहजे में नरमी है, उसके रवैये में बदलाव है। ईमान का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा है और शायद इसी वजह से घर में पहले जैसा तनाव भी कुछ कम हो रहा है। घर वालों को भी एहसास हो रहा है कि कुछ अजीब सा माहौल बन रहा है। शाहबीर में तब्दीली सबको महसूस हो रही है। आर्यन की वापसी ने भी घर में सुकून पैदा किया है। उसके माली मसाइल हल होने से सबने लंबी सांस ली है। पिया भी अपने दुखों से बाहर निकलकर थोड़ा सा खुश दिखाई देती है। यूं लगता है घर में हुआ की समत बदल रही है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी है। महनूर और उसकी माँ अब अपनी साजिश के अमली मरहले में दाखिल हो रही हैं। वो दोनों इस बात का मंसूबा बना रही हैं कि किस मकाम पर, किस लम्हे और किस तरीके से महनूर की गिरती हुई हालत का ड्रामा रचाया जाए। वो चाहते हैं कि झूठ इतना मजबूत लगे कि ना सिर्फ शाहबीर बल्कि पूरा घर यकीन कर ले। मगर किस्मत के खेल बहुत अजीब होते हैं। जिस झूठे हादसे की वो तैयारी कर रही हैं, वही हादिसा उनकी तबाही का असल सबब बनने वाला है। अगली किस्त में हालात इस मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां सच्चाई और झूठ आमने सामने खड़े होंगे। एक जानिब महनूर और उसकी माँ का फरेब होगा और दूसरी जानिब वो हकीकत जो देर से सही मगर पूरी शद्दत के साथ सामने आएगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, वादह हो रहा है कि अंजाम अब ज्यादा दूर नहीं और वो इंजाम महनूर के हक में हरगज नहीं होगा। कहानी अब इस निहायत नाजुक मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलानेत उसकी कमजोरियां और उसके खौफ पूरी शद्दत से सामने आ रहे हैं। महनूर के झूठ का दबाव अब सिर्फ उसकी सोच तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसके वजूद का हिस्सा बनता जा रहा है। वो हर लम्हा इस एहसास के साथ जी रही है कि जैसे उसके पैरों तले जमीन सुर्क रही है। उसकी माँ के चेहरे पर दिखाई देने वाली बौखलाहट और जल्दबाजी उसे मजीद गैर मुस्तहकम कर रही है। दोनों को मालूम है कि खेल अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और मामूली गलती भी उनके लिए तबाही ला सकती है। अंधेरा कमरे में कुछ ज्यादा ही गहरा महसूस होने लगा था, जैसे दीवारें खुद उन पर सवालात की सूरत में टूट कर गिरने वाली हूं। पिया की सांसें बेतरतीब थीं। वो मूसा की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी उसके अल्फाज उसके दिल तकदीर की तरह उतर रहे थे। मूसा का लहजा सख्त था, मगर उस सख्ती के पीछे कोई टूटा हुआ खौफ छिपा था। ऐसा खौफ कि कहीं पिया उससे छीन न ली जाए, कहीं वो उसके हाथ से फिसल न जाए। पिया ने लब काटे, आंखों में नमी भर आई, मगर उसने हिम्मत करके सिर उठाया। अगर मैं राजी हो भी जाऊं, क्या हालात सच में ठीक हो जाएंगे? उसकी आवाज़ लर्ज रही थी, जैसे वो खुद भी अपने सवाल के जवाब से डर रही हो। मूसा ने एक कदम आगे बढ़कर उसके कंधे थाम लिए। इस लम्स में शिद्दत भी थी और बेबसी भी। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर मुझे तुम्हारी हामी चाहिए।
बस एक बार पिया के दिल में एक अनजानी कैफियत ने जन्म लिया सी वफादारी, खौफ, मोहब्बत और बेयकीनी सब यकजा होकर वो उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आए थे जहां हर कदम एक फैसला था और हर फैसला एक अंजाम बन सकता था। पिया ने मूसा के हाथों की गर्म गिरफ्त को महसूस किया, मगर उसके दिल में चलने वाली ठंडी घबराहट कम न हुई। उसकी आंखों में नमी एक मुकम्मल आंसू बनकर पलकों से लड़खड़ाई, मगर वो करने नहीं दे रही थी। शायद इसलिए कि कमजोरी दिखाने से हालात और पेचीदा हो जाते। मूसा ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे वो उसकी खामोशी में छुपा हर लफ्ज पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। प्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम समझ क्यों नहीं रही? उसके लहजे में पहली बार वो लर्जिश थी जो सर्व सच्चे खौफ में होती है। पिया ने बेबसी से नजरें चुरा लीं। दिल चाहा कि भाग जाए, सब छोड़ दे, मगर कदम जैसे जमीन से जड़ गए थे। और अगर मैंने हाँ कह दी तो क्या तुम बदल जाओगे? सब बदल जाएगा? उसने धीमी मगर टूटी हुई आवाज में पूछा। चंद लम्हों की खामोशी ने कमरे का वजन दोबाला कर दिया। मूसा ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। इस बार सख्ती नहीं, सिर्फ इल्तिजा थी। हाँ, लेकिन तुम मेरे साथ खड़ी रहो तो तुम एक कदम चलोगी, मैं बाकी रास्ता संभाल लूंगा। प्या के दिल में जैसे कोई भारी सा पर्दा हिलने लगा, मगर उठा नहीं। उसे महसूस हो रहा था कि जो फैसला वो लेने वाली है वो सिर्फ आज की रात नहीं, बल्कि अगले कई बरसों की किस्मत बदल सकता है। पिया ने गहरी सांस ली, मगर जो बोझ उसके सीने पर रखा था वो हल्का होने के बजाय और ज्यादा भारी हो गया। कमरे के चारों तरफ फैली खामोशी ऐसे लग रही थी जैसे दोनों के बीच खड़े हर सवाल का मजाक ही उड़ रही हो। उसने धीरे से अपना हाथ मूसा की गिरफ्त से छुड़ाया, मगर दौर नहीं किया, सिर्फ इतना कि वो अपनी बात कह सके। तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो या अपने डर से बचने के लिए? पहली बार उसने आंखों में आंखें डालकर ये सवाल किया। मूसा की पलकें एक लम्हे को झपकना भी भूल गईं। इस सवाल ने उसके अंदर किसी छुपी हुई कमजोरी को बेनकाब कर दिया था। उसने नजरें नीची करके एक कदम पीछे लिया, जैसे वो अपने जज्बात का वजन संभालने के लिए जगह ढूंढ रहा हो। हाँ, डर भी है। तुम्हें खोने का खौफ हर दिन मुझे अंदर से खा रहा है, मगर ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं हूं। प्या, उसका लहजा भारी हो गया। पिया की धड़कनें तेज हुईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये एतराफ उसे करीब ला रहा है या मजीद दौड़ धकेल रहा है। उसने धीरे से रस्सी पर बैठते हुए अपना चेहरा हाथों में छिपा। या की आंखों में उतरती हुई उम्मीद और दिल में घबराहट का मिला चला रंग एक अजीब कैफियत पैदा कर रहा था। वो खुद भी नहीं जान रही थी कि उसकी दिल की धड़कनें खुशी की वजह से तेज हैं या खौफ की। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हवा भी उसके खौफ और शौक को सनती और बढ़ाती जा रही हो। मूसा ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा, न तो दबाव डालने के लिए, न तनकीद करने के लिए, बल्कि बस ये साबित करने के लिए कि वो यहाँ है। उसके लिए प्या के लब हल रहे थे, अल्फाज अंदर ही अंदर फंस गए थे और आंखों में सवालात और अल्ताया की मिली जली कैफियत थी। मूसा, क्या वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुम मुझे दोबारा नहीं छोड़ोगे? उसका सवाल इतना कमजोर था कि सुनकर लग रहा था जैसे किसी छोटे से कांटे ने दिल को चीर दिया हो। मूसा ने सिर झुकाया और उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि प्या का दिल खुद बेखुद नरम हो गया, मगर साथ ही उसकी अंदरूनी इत्तराब कम ना हुआ। पिया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने वादा किया है और ये वादा मैं हर हाल में निभाऊंगा। तुम्हारे खौफ को दूर करने के लिए, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। पिया की सांसें बेतरतीब हो गईं, दिल धड़क रहा था और आंखें नम। वो महसूस कर रही थी कि शायद ये लम्हा, ये मुकालमा उनके रिश्ते के लिए एक नया आगाज हो सकता है, मगर साथ ही वो अंदर से खौफ भी महसूस कर रही थी कि कहीं ये उम्मीद भी धोखा तो नहीं। उसके दिल में एक उलझना उभरी, क्या वो एतमाद कर सकती है या ये सब एक और टूट जाने वाली खुशी है? कमरे की खामोशी में एक अजीब सी कैफियत छाई हुई थी। पिया के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और सांसें बेतरतीब हो रही थीं, जैसे हर लम्हा उसके अंदर मौजूद खौफ और उम्मीद का मुकाबला कर रहा हो। उसकी आंखें मूसा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, मगर हर पल ये अंदाज़ा बदलता जा रहा था कि शायद वो सही कह रहा है या ये सब सिर्फ अल्फाज की बाजी है। मूसा ने उसके हाथ को मजबूती से थामा,
लेकिन इस बार सिर्फ मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कोई दबाव नहीं। उसकी आंखों में एक पख्ता यकीन था कि वो पिया को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। पिया ने सिर हल्का सा झुकाया और धीरे से कहा, मूसा, तुम वाकई हर चीज़ ठीक कर सकोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मेरा दिल दोबारा हासिल हो जाएगा? उसकी आवाज़ में लर्जिश और टूट फूट के निशानात थे, जैसे हर लफ्ज़ उसकी अंदरूनी बेबसी को जाहिर कर रहा हो। मूसा ने गहरी सांस ली और उसके लबों पर एक नर्म मगर पुरज़्म मुस्कुराहट आई। प्या, तुमने जो कुछ भी महसूस किया वो सब सच है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारे खौफ को कम करने और तुम्हें महफूज रखने के लिए मैं हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगा। तुम बस मुझे एक मौका दो और मैं बाकी रास्ता तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। ये अल्फाज पिया के दिल पर छलक गए। वो पहले तो खौफजदा थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक नई रोशनी जागने लगी। उसने महसूस किया कि शायद ये लम्हा, ये मकालमा उन दोनों के रिश्ते के लिए नया आगाज साबित हो सकता है। मगर साथ ही वो अंदर से हल्की सी दहशत भी महसूस कर रही थी, ये खौफ कि कहीं ये खुशी भी एक धोखा ना हो या कहीं दोबारा उसे टूटते हुए न देखना पड़े। पिया की आंखों में उम्मीद और खौफ के बीच एक नाजुक तवाजुन था, और कमरे की खामोशी हर लम्हे इस तवाजुन को झटक रही थी। रूर मैं उस मंजर को मज़ीद तफसील, कशमकश और जज्बात के साथ आगे बढ़ाता हूँ। पिया के दिल में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। एक तरफ उसकी आंखों में उतरती हुई उम्मीद थी कि शायद ये लम्हा उसकी जिंदगी का नया आगाज ले आए, और दूसरी तरफ अंदर छपा खौफ और बेचैनी उसकी हर सांस के साथ बढ़ रहा था। उसने महसूस किया कि हर लफ्ज़, हर लम्स और हर खामोशी उसके दिल पर एक वज़न की तरह है। मूसा का हाथ उसके हाथ में मजबूती से था, मगर इस मजबूती में ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ हिफाजत और यकीन की ताकत थी। पिया के लब हिल रहे थे और दिल चाहा कि वो चीख कर सब कुछ बता दे, अपनी बेबसी और अंदर के खौफ को खोल दे, मगर ज़बान रखी हुई थी और हर लफ्ज़ अंदर दब गया था। पिया ने धीरे से पूछा, मूसा, क्या वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुम्हें यकीन है कि अब तुम वाकई बदल गए हो? उसकी आंखों में शकूक और उम्मीद का मिला जला रंग था, और उसकी आवाज़ में वो लर्जिश थी जो सिर्फ किसी बड़े जज्बाती धचके के बाद आती है। मूसा ने चंद लम्हे के लिए नज़रें नीची कीं, और जैसे वो अपने अंदर छपी हुई मुकम्मल सच्चाई को जमा कर रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ पिया, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। जो वादा मैंने तुमसे किया है वो मैं हर हाल में निभाऊंगा। तुम बस एक बार अपने दिल को मुझ पर यकीन करने दो, बाकी रास्ता मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। ये अल्फाज पिया के दिल में एक हल्की सी हलचल पैदा कर गए। उसके अंदर उम्मीद की एक रोशनी जागने लगी, मगर साथ ही एक खौफ भी सर उठा गया। ये खौफ कि शायद ये सब अल्फाज सिर्फ आर्जी हों और हकीकत फिर से उसे तोड़ दे। पिया ने पलकें झपकाएं और दिल में एक ही ख्याल आया कि हर लम्हा अब एक फैसला है। हर फैसला उनके मुस्तकबल के रिश्ते का पता दे रहा है। कमरे में छाई खामोशी ने जैसे इस लम्हे को और भी नाजुक और सनसनी खीज बना दिया। हर सांस, हर नज़र और हर दिल की धड़कन उस लम्हे के वज़न को बढ़ा रही थी, और पिया को एहसास था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पिया के दिल में एक अजीब सा हलचल मच रही थी। हर सांस जैसे उसके दिल की धड़कन के साथ ठुकराने लग रही थी, और हर पल उसके अंदर खौफ और उम्मीद के बीच झूल रहा था। उसके अंदर एक तरफ सुकून की लहर दौड़ रही थी कि शायद ये लम्हा उसकी जिंदगी में खुशियों का आगाज ले आए, और दूसरी तरफ एक खौफ भी था कि कहीं ये खुशी महज धोखा न बन जाए। उसने महसूस किया कि हर लफ्ज़, हर नज़रें और हर खामोश लम्हा उसके दिल पर एक बोझ की तरह है। मूसा का हाथ उसके हाथ में था, मगर इस मजबूती में ताकत की बजाय हिफाजत और यकीन की मट्ठास थी। पिया के लब हिल रहे थे, मगर वो अपने अंदर छुपी जज्बाती शिद्दत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में लाखों सवाल थे, मगर ज़बान जवाब देने से कासिर थी। पिया ने आहिस्ता से कहा, मूसा, क्या वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुम वाकई बदल गए हो या ये सब बस अल्फाज हैं? उसकी आंखों में शकूक और उम्मीद का मिला जला रंग था, और उसकी आवाज़ में वो लर्जिश थी जो सिर्फ अंदरूनी कशमकश के बाद आती है। मूसा ने नज़रें नीची करके चंद लम्हे सोचा, फिर उसने आहिस्ता और पुख्ता लहजे में कहा, पिया, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम बस एक बार अपने दिल को मुझ पर यकीन करने दो, बाकी रास्ता मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। ये अल्फाज पिया के दिल पर
ऐसे असर डाल रहे थे जैसे किसी ने एक भारी बोझ उतार दिया हो। उसके अंदर उम्मीद की रोशनी जागने लगी। जरूर मैं उस कहानी को मजीद तफसील, कशमकश और जज्बाती शिद्दत के साथ आगे बढ़ाता हूँ। अब कमरे में फजा और भी भारी महसूस होने लगी थी। पिया की हर हरकत में एक छिपी हुई इत्तराब झलक रही थी और हर पल उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लग रहा था पूरा कमरा उसकी धड़कनों से गूंज रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें खौफ और शक के बीच झूल रही थीं और हर लम्हा ये सवाल उभरता कि क्या वाकई ये सब कुछ सच है या फिर एक और धोखा है जो उसके दिल को तोड़ देगा। मूसा का हाथ अब भी उसके हाथ में था, मगर इस बार उसमें मोहब्बत के साथ पख्ता यकीन की ताकत भी महसूस हो रही थी, जैसे वो बगैर किसी दबाव के सिर्फ ये साबित करना चाहता हो कि वो हमेशा पिया के साथ रहेगा। पिया ने हल्के से सांस लेते हुए कहा, मूसा, क्या तुम वाकई हर चीज ठीक कर सकोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे दोबारा कभी धोखा नहीं दोगे? उसकी आवाज में लर्जिश और बेबसी का इम्तिजाज था, जैसे दिल के अंदर छिपी हुई हर कैफियत को बाहर निकालने की कोशिश हो रही हो। मूसा ने चंद लम्हे के लिए नजरें झुकाएं, फिर आहिस्ता से बोला, पिया, तुम्हें धोखे देने का कभी इरादा नहीं था और न होगा। जो वादा मैंने तुमसे किया है वो मैं हर हाल में निभाऊंगा। तुम बस मुझे एक मौका दो और मैं बाकी रास्ता तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। ये अल्फाज पिया के दिल में एक नरमी की लहर पैदा कर गए, मगर साथ ही उसके अंदर खौफ की एक छोटी सी लहरें भी उठने लगें। वो महसूस कर रही थी कि यह लम्हा न सिर्फ उसके दिल की हालत बदल रहा है बल्कि मुस्तकबल की समत भी मुतय्यन करने वाला है। उसके दिल में उम्मीद और खौफ एक साथ मौजूद थे और हर पल इस तवाज़ुन को कमरे की खामोशी मजीद नाजुक और सनसनीखेज बना रही थी। पिया के दिल में यह एहसास जाग रहा था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हर फैसला, हर लम्हा और हर गुफ्तगू उन दोनों की जिंदगी का रख बदल सकती है। अब कमरे में फजा और भी ज्यादा संगीन और सनसनीखेज हो गई थी। पिया के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और सांसें बेतरतीब, जैसे हर लम्हा उसके अंदर खौफ और उम्मीद एक साथ लड़ रहे हों। उसकी आंखें मूसा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, मगर हर लम्हा उसके दिल में एक उलझन बढ़ती जा रही थी। क्या ये सब हकीकत है या फिर एक और धोखा जो उसे अंदर से तोड़ देगा? पिया के हाथ कांप रहे थे और उसके दिल में छिपी बेचैनी हर लम्हा उसे ये